So welcome to dear students. So today my next lecture, that is of the series of deflection of beam, and in this lecture I will solve few problems based on the direct formula, right? So today my session is, that is of the numerical session. I will solve some problems and I will discuss some concept which I've already discussed in my previous lectures, and based on that concept we will solve some problems, right? So let us start it now. So first problem I'm taking here, this is the cantilever beam, right? This is the cantilever beam and it is having a square cross section. Cantilever beam with the square cross section of 6 mm wide, right? So the load, vertical load of 5 kilonewton is acting on the beam at the point, at the free end, you can say at this point the load is acting. Young modulus of elasticity of the material, that is also given, it is 200 GPa. And what we have to find out, we have to find the magnitude as well as magnitude of the slope of magnitude of slope and deflection at this point Q, which is 40 meter from the fixed end, right? So which is 40 meter from the fixed end. तो दिस इज माई प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम है। कैंटिलीवर बीम है, उसके फ्री एंड के ऊपर लोड एक्ट करेगा इस पॉइंट के ऊपर, राइट? और क्रॉस सेक्शन दिया है इसका बीम का, दैट इज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो जहां से हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? सो आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी, राइट, व्हेन वी विल यूज द डायरेक्ट फार्मूला। सो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन देने का, जहां पे क्लियर करने का ये मतलब था यहाँ पे, so that we can find the value of moment of inertia, Young modulus of elasticity that is given, and the magnitude. We have to find the magnitude of slope and deflection at this point Q, right? So this is my first question, and this is based on the concept of this. ये जो इसका मैंने previous lectures थे उसमें मैंने ये concept दिया था कि if the load is acting at the free end, just remember that if you have seen my lecture there, either if you have not seen the lectures, it is my request you, I can say that you go to my previous lecture so that you can have a detailed concept there. तो ये concept क्या था, जहाँ पे load is acting at this point at the free end, but we have to find the slope and the deflection at this point, that is point on the beam, that is not at the free end. फ्री एंड के ऊपर पॉइंट लोड है, तो जहां पर तो हम बड़ा इजीली वी कैन कैलकुलेट द स्लोप। अगर हमें कोई कहे कि एट दिस पॉइंट इज, सपोज इफ दिस पॉइंट इज ए, आई विल टेक, तो एट द पॉइंट दिस, जहां पे अगर हमें निकालना है तो वी विल यूज द डायरेक्ट फार्मूला, राइट? तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा स्लोप का, WL²/2EI फॉर द पॉइंट लोड, एंड द डिफ्लेक्शन के लिए WL3/3EI, right? So we can easily solve it. But here also we are using the formula, direct formula. Here also we are using the direct formula. But there is some concept, how we can use it, how we are able to use the formula, that we have to see. क्योंकि हमें जो slope और deflection है वो इस point के ऊपर निकालना है, right? तो मैंने जैसे आपको पीछे अगर मेरा लेक्चर देखें तो केस फर्स्ट मैंने आपको दिया था, उसमें क्या है कि अगर देखिए केस फर्स्ट क्या था, अगर जहां पे अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये आपका बीम है, राइट? सपोज दिस इज योर बीम हियर एंड द लोड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट ए, राइट? एंड वी हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट बी, राइट? तो अगर इस केस में हम देखें, इफ आई विल ड्रा you can say, if I will draw the elastic curve for this, because अगर मैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इसकी लेता हूं, लोड अगर आपका सपोज W इज द लोड इज एक्टिंग हियर, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जो होगी
जहां पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखता हूं तो दैट इज W इंटू एक्स, मीन्स बेंडिंग मोमेंट बिटवीन A एंड B दैट इज इक्वल टू W इंटू एक्स। अगर दिस इज द एक्स डिस्टेंस तो बेंडिंग मोमेंट इज W इंटू एक्स, राइट। तो जो हमारी इस केस में जो हमारी इलास्टिक कर्व होगी, राइट, तो इलास्टिक कर्व जो होगी, डिटेल इसको मैंने दिया है तो जहां पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो हमारी जो इलास्टिक कर्व होगी इट इज लाइक दिस। सो इलास्टिक कर्व इन दिस केस दैट इज द क्यूबिक पैराबोला, राइट। इलास्टिक कर्व हमारी जो होगी दैट इज क्यूबिक पैराबोला इन दिस केस। अब देखिए, इफ आई शिफ्ट द पॉइंट फ्रॉम हेयर टू हेयर, अगर मैं पॉइंट को A से B को के ऊपर शिफ्ट करता हूं, इस केस में अगर मैं पॉइंट को A से B के ऊपर शिफ्ट करता हूं, सपोज इफ आई राइट, तो जहां पर भी जो मेरा बेंडिंग मोमेंट था W इंटू एक्स था, और अगर मैं जहां से जहां पर भी शिफ्ट करता हूं तो इस पॉइंट के ऊपर भी मेरा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो दैट इज W इंटू एक्स, मीन्स अगर जहां से जाके जहां तक लेंथ है L, तो जहां पे बिटवीन A एंड B जहां पर भी हो आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होगा W इंटू एल, और शिफ्ट करने के बाद भी जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। यू अंडरस्टैंड दिस? So you can say that we can shift, we can transfer this from here to here because जो आपकी इलास्टिक कर्व होगी, your elastic curve will remain same। और जहां पे मैंने आपको एक पॉइंट दिया था कि अगर बेंडिंग मोमेंट बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट विल रिमेन सेम, जो बेंडिंग मोमेंट आपका शिफ्टिंग से पहले होगा, अगर सेम बेंडिंग मोमेंट आपका शिफ्टिंग के बाद यू विल गेट, अगर सेम बेंडिंग मोमेंट आपको मिलता है तो क्या होगा, क्योंकि देखिए बी के ऊपर पॉइंट ए के ऊपर लोड है तब भी बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, W इंटू एल, और अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं तो तब भी आपका बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, W इंटू एल। सो यू कैन से दैट द बेंडिंग मोमेंट विल रिमेन सेम, and when the bending moment will remain same, it means your elastic curve that will remain same, there is no change in the elastic curve। So in this case we can shift it the load from this point to this point। now second case था इसमें, तो सर सेकंड केस मैंने लिया था, ये मैं थोड़ा सा प्रीवियसली आपको कंसेप्ट के ऊपर दोबारा ले जा रहा हूं, राइट, क्यों अदरवाइज प्रॉब्लम तो इसका सिंपल है, सीधे इसको शिफ्ट करो और उसको न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दो। तो सेकंड केस जो आपका था वो क्या था, सेकंड केस में इसी तरीके से आपका ये है, सपोज ये आपकी कैंटिलीवर बीम है, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम हियर। सो इन दिस केस ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये भी एल लेंथ है, ये भी एल है, बट द लोड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट बी, लोड इज एक्टिंग एट पॉइंट बी, राइट। अब देखिए लोड जो है आपका इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करता है, तो बेंडिंग मोमेंट तो जो इसका होगा, इसका बेंडिंग मोमेंट तो WL होगा, बेंडिंग मोमेंट ऑफ बी सी की, मैं सी ले लेता हूं, बेंडिंग मोमेंट बिटवीन बी एंड सी, राइट, दिस इज W इंटू एल, बट बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए एंड बी दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि लोड जहां पे एक्ट कर रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 0। एंड इफ आई विल ड्रा द इलास्टिक कर्व इन दिस केस, तो इलास्टिक कर्व हमारी क्या होगी, फ्रॉम बी टू सी इट इज क्यूबिक पैराबोला, राइट। और जहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या है आपका 0 है, जब बेंडिंग मोमेंट 0 है तो इलास्टिक कर्व जो आपको मिलेगी ये स्ट्रेट मिलेगी। अब ये कैसे मिलेगी, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, ये इसको मैंने आपको ड्राइव करके बताया है कि हाउ वी विल गेट द बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेट, इलास्टिक कर्व इज स्ट्रेट, राइट, हाउ वी विल गेट द इलास्टिक कर्व स्ट्रेट। तो इस कंसेप्ट को ये जो न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करेंगे, ये लोड शिफ्टिंग करने वाले, तो इनका कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट कंसेप्ट मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स, आई थिंक इससे जो पहले वाला लेक्चर था और जो उससे पहले वाला लेक्चर था, जो इनसे दोनों पहले वाले लेक्चर्स हैं, वहां पे इसका कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करके दिया है, राइट। तो जो इलास्टिक कर्व होगी इस पॉइंट से फ्रॉम बी टू ए, बिकॉज द बेंडिंग मोमेंट इज 0, व्हेन द बेंडिंग मोमेंट इज 0, तो इलास्टिक कर्व होगी दैट इज द स्टेट। इलास्टिक कर्व क्या होगी,
जहां पे स्टेट होगी। तो इलास्टिक कर्व दैट इज इलास्टिक कर्व इज स्टेट, यू अंडरस्टैंड। और अगर ये है आपकी इलास्टिक कर्व की पोजीशन, फ्रॉम B to C your elastic curve is cubic parabola and from B to A the elastic curve is state, you understand। अब देखिए इसी केस में अगर मैं इस लोड को जहां पे शिफ्ट करता हूं, इफ आई विल शिफ्ट द लोड फ्रॉम B to A, अगर जहां से लोड शिफ्ट करता हूं तो क्या होगा, एक तो हमें लोड W मिलेगा और दूसरा हमें क्या मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा। मूवमेंट क्या मिलेगा, W इंटू एल, राइट। तो मूवमेंट हमें मिलेगा W इंटू एल। तो इस केस में जो हमारी इलास्टिक कर्व होगी यही होगी, इस तरीके से जो बेंडिंग मूवमेंट है जी हमें। अब जहां पे देखिए, जहां पे आपका बेंडिंग मूवमेंट जो था, ये आपका बेंडिंग मूवमेंट जहां से जहां तक लाने में है, क्योंकि पहले बेंडिंग मूवमेंट बिटवीन A and B is 0. Now the bending moment between A and B, this is equal to W into L. So it means that the bending moment is changed here. So इसमें आपकी जो इस केस में अगर इलास्टिक कर्व की बात करूं तो ये जो आपकी इलास्टिक कर्व होगी ये प्योरली क्यूबिक पैराबोला होगी, राइट। तो इसमें आपने देखा कि इफ आई हैव शिफ्टेड द लोड from this point to this point, in this case you have seen one thing, that your elastic curve will change. पहले elastic curve from B to C you are getting cubic parabola and from B to A you are getting the straight line. But when I have shifted the load, when I have transferred the load from B to A, what happens that your elastic curve is complete elastic curve, that is the cubic parabola. तो आपकी पूरी इलास्टिक कर्व चेंज हो गया, आपका पूरा सिस्टम चेंज हो गया। तो इस केस में B will not shift the load, we will not transfer the load। हम ऐसे केस में if the load is acting, अब कंक्लूजन क्या है इसका, if the load is acting on somewhere on the beam, the load is acting somewhere on the beam, not at the free end, B cannot transfer the load from B to A. B cannot transfer the load from B to A, means at the free end. Reason is, if you will transfer the load from B to A, that is not practically possible because your elastic curve that will change, your equation of bending moment will change, elastic curve will change, right? But in case of जो first case मैंने दिया था कि if the load is acting at the free end, just like this as the question is given here, तो ये लोड जो आपको जहां पे दिया है and we want to calculate the slope and the deflection at this point, तो ये जो हमारे डायरेक्ट फार्मूला है उसमें क्या होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना हो उस पॉइंट के ऊपर आपका लोड एक्ट करना चाहिए, राइट। उस पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, आपका लोड आप एक्ट करें। तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि लोड तो इस पॉइंट के ऊपर नहीं है, load is at this point, then how we can calculate? Reason is, हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं फ्रॉम हियर टू हियर, अगर ये पूरी की पूरी जो है ये क्या है, अगर लोड आपका इतना है तो तब भी आपकी इलास्टिक कर्व जो है ये क्या है, क्यूबिक पैराबोला। इलास्टिक कर्व इज क्यूबिक पैराबोला बिकॉज, राइट। और अगर आप इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर भी शिफ्ट करते हैं, राइट, अगर इस पॉइंट के ऊपर भी शिफ्ट करते हैं तो तब भी आपका बेंडिंग मोमेंट जो इक्वेशन होगी इस केस में सेम होगी। तो आपकी जो इलास्टिक कर्व होगी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप शिफ्ट करेंगे तो तब भी आपका जो होगा वो क्या होगा, इलास्टिक कर्व होगी। सो इस केस में if the load is acting at the free end and you want to find the slope and the deflection on any point on the beam, right, at any point on the beam, you can transfer the load from free end to that point. But reason is your elastic curve will remain same। जहां पे है तो तब भी जो इसकी इक्वेशन है, अगर मैं L लेंथ लेता हूं तो तब भी जो इसकी आपका बेंडिंग मूवमेंट है W into L होगा,
राइट, जहां पे है तो जहां पे क्या होगा W इंटू एल, और अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तब भी बेंडिंग मोमेंट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। बेंडिंग मोमेंट सेम होगा, इलास्टिक कर्व सेम होगी, ठीक है। सो वी कैन शिफ्ट इट, यू अंडरस्टैंड दिस। ये प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, उसमें आपको पूरा क्लियर करके ये जो बड़े स्पेशल केसेस हैं, यू कैन से दीज आर द स्पेशल केसेस दैट हाउ वी कैन यूज द फार्मूला। फार्मूला तो यही डायरेक्ट फार्मूला ही लगेगा, बिकॉज ये जो आपने ऊपर देखा हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्व बाय यूजिंग द डायरेक्ट फार्मूला। सिर्फ स्पेशल केसेस हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे, कुछ डिफरेंट कंसेप्ट होंगे, हाउ वी विल यूज द फार्मूला। उसके लिए आपको देखना है, तो ये पहली चीज इसमें मैंने आपको क्लियर कर दी कि अगर इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन आता है एंड यू हैव टू फाइंड द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन on the different point load is acting here, you want to find the slope and deflection on anywhere on the beam, at anywhere on the beam at different point। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट करेंगे। we will shift the load and deflection, तो सॉरी we will shift the transfer the load, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। हम क्या करेंगे, राइट, तो जे आपका क्या है, जे पॉइंट आप ले लीजिए क्यू, जे पॉइंट आपका हो गया क्यू, राइट। तो आपने इसको जहां पे शिफ्ट किया, तो जहां से लेके जहां तक जो लेंथ थी आपकी वो क्या है, 40 mm, जहां से जहां तक लेंथ है आपकी 40 mm, राइट। तो जहां पे क्या होगा, जब आपने शिफ्ट किया तो एक आपको लोड मिलेगा W, राइट, और एक आपको मूवमेंट मिलेगा, राइट। एक आपको क्या मिलेगा, लोड मिलेगा W एंड मूवमेंट मिलेगा W इंटू एल। मीन्स W इंटू एल कितना होगा, लोड W कितना है, लोड W आपका आ गया 5 किलो न्यूटन, और W इंटू एल कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10³ किलो न्यूटन को मैंने न्यूटन में किया, और शिफ्ट कितना होगा, जहां से जहां तक 60 तो इंटू 60, सो दिस इज इक्वल टू 300 इंटू 10³ न्यूटन mm, राइट, यू अंडरस्टैंड दिस। तो पॉइंट बी के ऊपर हमें क्या मिला, पॉइंट बी के ऊपर हमें लोड मिला, सो एट पॉइंट बी फर्स्ट आप लिख लीजिए ट्रांसफर द लोड, ट्रांसफर द लोड फ्रॉम ए टू बी, राइट। सो देयरफॉर एट पॉइंट बी लोड क्या होगा, लोड अगर आपका W है, दिस इज 5 किलो न्यूटन, एंड M मूवमेंट कितना मिला, 300 इंटू 10³ न्यूटन mm, राइट। अब ये देखिए, अब ये प्रॉब्लम बन गया पॉइंट लोड वाला, हमें पॉइंट क्यू के ऊपर ही निकालना है स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन। तो स्लोप एट पॉइंट क्यू, अब देखिए जहां पे देयर इज नॉट सिंगल लोड एक्टिंग हियर, एट पॉइंट क्यू one is the load, vertical load, point load is acting, and the second one is movement is acting here.
तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, अगर जब इससे पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं मेरे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उन दोनों लेक्चर्स को आप पहले डिटेल में देखिए। तो जब किसी पॉइंट के ऊपर मोर देन 2 लोड्स हो, 1 लोड हो, मोर देन 1 लोड हो, लोड है या मूवमेंट है, तो आपने उस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालना है या उस पॉइंट के ऊपर आपने डिफ्लेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे आपने स्ट्रेस स्ट्रेन में आपने सुपरपोजिशन मेथड पढ़ा था कि सुपरपोजिशन मेथड से हम निकालते हैं, मींस व्हेन देयर आर मोर देन 1 लोड आर एक्टिंग ऑन द बीम और द बार, यू कैन से, एंड वी वांट टू फाइंड द deflection, want to find the deflection, then how we can do it? We use the superposition method here. तो superposition का मतलब क्या है? What is the meaning of that? Separately, first we will consider the point load, only the point load, and with the point load we will find the slope as well as the deflection separately. Then we will consider the couple, and with this will calculate, we will find the slope as well as the direction separately दोनों को कंसिडर करें, separately स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करें, और उसके बाद आप क्या करें, आप इन दोनों का सम कर दें, तो आपको टोटल स्लोप मिल जाएगा और टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा एट दिस पॉइंट। यू अंडरस्टैंड? तो हम क्या करना पड़ेगा, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप आपकी स्लोप एट क्यू, पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं एट क्यू। तो स्लोप एट क्यू निकालने के लिए देखिए, पहले है पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड का क्या फार्मूला होता है? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स एंड, तो जो डिस्टेंस लेना पड़ेगा जहां से जहां तक, फिक्स एंड क्या है? क्यू, तो जहां से 40 mm है, राइट। तो स्लोप का फार्मूला है, एज पर पॉइंट लोड की बात करूं, WL² अपॉन 2EI, राइट। दिस इज द स्लोप Q ड्यू टू लोड W, राइट। और ड्यू टू द कपल या मूवमेंट की बात करें, और कपल के हिसाब से अपने स्लोप निकालनी है, कपल ड्यू टू कपल, तो अगर कपल है आपका M, तो स्लोप क्या होगी? व्हाट इज द स्लोप? दैट इज M इंटू L अपॉन EI, राइट। ये डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको दिए थे। तो ये प्रोसीजर है स्लोप निकालने का, सेपरेटली निकालने, और टोटल स्लोप यू विल गेट दियर। क्योंकि पहले स्लोप आपने पॉइंट लोड से निकाल ली, द पॉइंट लोड का ये फार्मूला WL² अपॉन 2EI, एंड द सेकंड इज ड्यू टू कपल, यू हैव कैलकुलेटेड द स्लोप। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू स्लोप एट Q, दिस इज इक्वल टू, ये लिखे WL² अपॉन 2EI प्लस, समझाया ये पॉइंट, प्लस M इंटू L अपॉन EI, राइट। M इंटू L अपॉन EI। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप क्या करें, इसकी वैल्यू सब आप सब्स्टिट्यूट कर लें, राइट। तो R, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या आएगी? W, व्हाट इज W? 5 इंटू 10⁻³ L इज 40 स्क्वायर इंटू 40 का स्क्वायर, राइट, अपॉन 2, व्हाट इज E? E is given 200 EPA, so this is equal to 200 इंटू 10⁻³ MPa में आपने कन्वर्ट कर लिया, एंड I, हाँ, अब देखिए I क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात किया था मैं। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, it is given in this problem that this beam is the square cross section. बीम का कौन सा क्रॉस सेक्शन है? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, जो फार्मूला है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो है BdQ/12, BdQ/12।
अब देखिए, दिस इज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इट मींस दैट द विड्थ एंड द हाइट आर डेप्थ, यू कैन से डी, बी और डी की वैल्यू क्या होगी, दोनों की 6 ही होगी। दिस इज द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो आई आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, बी की भी मैं 6 लिखूं और डी की भी 6 लिखूं, तो जब बन जाएगा 6 रेज टू पावर 4 अपॉन 12, राइट। 6 रेज टू पावर 4 अपॉन 12, दिस इज द आई। तो आई की जगह लिख लीजिए आप इंटू 6, 12 आप ऊपर ले लें इंटू 12, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस। अब आ जाइए प्लस, व्हाट इज योर एम, एम क्या है 300, ये निकाला मैंने, एम है W इंटू एल, कपल क्या है W इंटू एल, तो एल क्या है यहां पे 60, 300 इंटू 10⁻3, तो ये आ गया 300 इंटू 10⁻3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई व्हाट इज योर E, सेम 200 इंटू 10⁻3 and I वही into 6 and into 12, you understand, 6 into 12। तो आप इसको आप निकाल लीजिए, कैलकुलेटर लीजिए एंड यू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। सो व्हाट इज द वैल्यू, जी आप सीधा सीधा काट लीजिए आप, सॉरी 6 रेज टू पावर 4 था ये, दिस इज 6 रेज टू पावर 4 एंड दिस इज ऑल्सो 6 रेज टू पावर 4, राइट। सो कैलकुलेट दिस, so this is 0.74055, so slope is 0.74055 and this is in radians, right। so this is the slope at point Q। तो J numerical is very easy, सिर्फ इसमें आपने जहां पे आपको दो कंसेप्ट क्लियर हुए, राइट। इसमें क्या दो कंसेप्ट क्लियर हुए कि लोड आपका इस पॉइंट के ऊपर, डिफरेंट पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा था एट द फ्री एंड, बट वी हैव टू फाइंड द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन समवेयर ऑन द बीम एट द डिफरेंट पॉइंट। तो इसमें पहला स्टेप आपको क्या क्लियर हुआ कि आप क्या करेंगे कि अगर आपका लोड फ्री एंड के ऊपर है और किसी और पॉइंट के ऊपर, बार के किसी और पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप और डिफ्लेक्शन को निकालना है, तो आप इसको ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने से आपको क्या मिलेगा, आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो आपको लोड मिलेगा और दूसरा आपको कपल मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट।
सेकंड पॉइंट क्या है कि जिस पॉइंट के ऊपर आप फाइंड इसको ट्रांसफर किया तो वहां पे आपको लोड मिलेगा, कपल मिलेगा, जहां से आप सेपरेटली फर्स्ट लोड के यू कैन से बेस के ऊपर आप स्लोप या डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे और फिर आप कपल जो होगा वहां पे उसके बेस के ऊपर स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों के फार्मूले डायरेक्ट फार्मूले आपको दिए हैं और इनको सेपरेटली फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, इनको इस तरीके से सम कर लेंगे। सो देन यू विल गेट द टोटल स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन। तो स्लोप वाला क्लियर हो गया। अब डिफ्लेक्शन का भी सेम है तो इसको बिठा देते हैं। अब देखिए डिफ्लेक्शन। सो अब आ गया आपका डिफ्लेक्शन, जिसको आप बाई के साथ भी डिनोट करते हैं, बाई क्यू निकालना है, राइट। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पॉइंट लोड से, जहां पे क्या पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के हिसाब से जो फार्मूला होता है WL/3EI, राइट। प्लस दूसरा क्या है, यहां पे कपल है, कपल के हिसाब से जो फार्मूला होगा ML²/2EI, राइट। सो दिस इज द रिलेशन। देखिए जो फार्मूला है, जो रिलेशन है वो सेम है, सिर्फ हमें ये देखना है कि अगर प्रॉब्लम्स आपको, अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम आ जाए, जिस पॉइंट के ऊपर आपने निकालना है उसी के प्रॉब्लम पॉइंट के ऊपर लोड है या कपल है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। जहां पे क्या है कि आपने निकालना किसी और पॉइंट के ऊपर है और लोड जो आपका है वो किसी और पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो दैट यू हैव टू सी, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन दिस केस, राइट। तो ये आपका हो गया, सुपरपोजिशन लगाया, पहले आपने डिफ्लेक्शन लोड से निकाल दिया, दिस इज ड्यू टू द लोड एंड दिस इज ड्यू टू द कपल व्हेन इट इज एक्टिंग एट ए पॉइंट, राइट। तो आप कर लीजिए, पुट कर लीजिए वैल्यू, देयरफॉर डिफ्लेक्शन एट क्यू, व्हाट इज योर डब्ल्यू, पुट करो 5 इंटू 10⁻³ व्हाट इज एल, 40 का क्यूब, राइट, डिवाइडेड बाई 3, 200 10⁻³ ई की वैल्यू यहां से ले ले और आई मैंने निकाल के दिया है इंटू 6⁴ इंटू 12, राइट, यू अंडरस्टैंड। प्लस व्हाट इज योर एम, जो मैंने निकाला था, एम जे था आपका WM, दिस इज 300 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, राइट, यही था ना ये वैल्यू। तो m की वैल्यू हो गई, दिस इज 300 इंटू 10⁻³ एंड L इज 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200 10⁻³ इंटू I 6⁴ 12, राइट। तो इसको आप भी सॉल्व कर लीजिए, ये काट दीजिए, तो कैलकुलेटर लीजिए और इसका निकाल लीजिए कितना है। सो देखिए
तो ये पहला आया था 4.93, ये 11.1111 एंड टोटल इज 16.04 mm. सो दिस इज ये आया था 4.93, चेक कर लीजिएगा आप, ये वाली वैल्यू प्लस 11.1111. So therefore by Q this is equal to 16.04 mm, right? 16.04 mm. So you understand this problem? ये प्रॉब्लम क्लियर है? ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप आई थिंक इसको आप मैंने इसको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, कंसेप्ट क्लियर किया है, तो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम कहां से भी आ जाए तो आप इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो प्रॉब्लम में क्या था, पॉइंट लोड कहां पे एक्ट करता है? फ्री एंड के ऊपर. हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन डिफरेंट पॉइंट के ऊपर निकालनी है ऑन द बीम, बस. दिस इज ऑल. स्टेप फर्स्ट, ट्रांसफर द लोड. You will get the load and the couple, and then you will use the superposition theorem. Means superposition method क्या होगा? First you will calculate the slope and the deflection. Slope, why use the slope and the deflection separately by using the point load as well as ये आपका couple होगा, तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए and you will get the value, right? So this is the first question. Now come to the second question. We will come to the second question. इसको लिख लेते हैं पहले. So you see, this is your numerical problem number second. क्या है? What is the problem of the second? A cantilever beam is having the uniformly distributed load from the free end up to the middle of the beam, right? And if L is the length of the beam, so then it means that from here to here, it is the length is L by 2. The load is acting, UDL load is acting from the free end to the middle of the beam. The flexural rigidity of the beam that is given. तो flexural rigidity जो कितना है? Flexural rigidity that is equal to EI. Flexural rigidity is E and I, and we have to find the slope and the deflection at the mid of the beam. तो हमें क्या निकालना है? Slope and deflection at the middle of the beam, right? So middle of the beam means at this point B, because your UDL load that is from, as shown in the figure, that is from the free end to the middle of the beam. जहां से लेके जहां तक क्या है? UDL load है. and if L is the total length of the beam, तो जहां से लेके जहां तक क्या हो गया? L by 2, और जहां से लेके जहां तक क्या हो गया? L by 2, right? This is also the same nature of question. There is no difference because we have to find the slope and the deflection at this point B, and load is acting somewhere here. Load is acting somewhere here, and we have to find the slope and the deflection, right? जहां से इस साइड से हम इस साइड के ऊपर लोड को ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो फ्री एंड के ऊपर है, चाहे कहीं भी है, जहां से जहां तक, बट वी कैन नॉट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम हेयर टू हेयर. यू अंडरस्टैंड? तो जहां से जहां तक हम क्या करते हैं? लोड को हम ट्रांसफर कर सकते हैं. हाउ वी कैन ट्रांसफर द लोड? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द यूडीएल लोड इनटू द पॉइंट लोड. पहले हमें यूडीएल लोड को किस में कन्वर्ट करना है? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है. यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है. तो आप कह सकते हैं लोड क्या होगा? फ्रॉम हेयर टू हेयर लोड जो था, दिस इज इक्वल टू W इंटू
L/2। यू अंडरस्टैंड? पहला पॉइंट हो गया कि जे W दिया है, W पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ हमारी L/2 है, तो टोटल लोड हमारा क्या हो गया? आप टोटल लोड कर लीजिए, लोड ठीक है, लोड इज इक्वल टू W इंटू L/2। अब सेकंड थिंग ये है कि लोड तो हमें मिल गया, यूडीएल लोड मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द लोड, दैट वेयर दिस लोड इज एक्टिंग। हमें इसका लोकेशन को फाइंड आउट करना है कि जो इसकी लोकेशन जो है, हाँ, इसकी लोकेशन जो है कहां पे है, ये कहां पे एक्ट कर रहा है। अब देखिए, जैसे आपको पता है कि यूडीएल लोड जो है दैट विल ऑलवेज एक्ट on the center of the load distribution। तो जो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे फ्रॉम हेयर से हेयर कितनी लेंथ के ऊपर है? L/2 के ऊपर है। तो जो लोड होगा वो कहां पे एक्ट करेगा? वो इसके सेंटर में एक्ट करेगा। लोड कहां पे एक्ट करेगा? सपोज अगर L/2 का मैं जे सेंटर लेता हूं, ये जो लोड है आपका ये वाला, तो जे आपको जहां पे एक्ट करेगा W इंटू L/2, सेंटर के ऊपर एक्ट करेगा, राइट? पॉइंट लोड कहां पे एक्ट करेगा? सेंटर के ऊपर एक्ट करेगा। अब जब सेंटर के ऊपर एक्ट करेगा तो जहां से A से लेके B तक जो है दैट इज द टोटल लेंथ इज L/2। सो इट मींस दैट फ्रॉम हेयर टू हेयर जो लेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए? L/4। यू अंडरस्टैंड? फ्रॉम हेयर टू हेयर द लेंथ इज L/4। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया? अपने यूडीएल लोड निकाल लिया, यूडीएल लोड को कन्वर्ट कर लिया अपने पॉइंट लोड के ऊपर, और पॉइंट लोड की अपने पोजीशन भी देख ली कि ये किस पोजीशन के ऊपर कहां पे एक्ट कर रहा है, उसका डिस्टेंस किस पॉइंट से कितना है, जहां पे हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। where we have to find the slope and deflection at this point B। लोड हमारा जहां पे एक्ट कर रहा है, स्लोप और डिफ्लेक्शन हमें कहां पे निकालना है? पॉइंट B के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? We have to transfer the load from here to here। You understand? We can transfer the load from this point to this point। क्योंकि अगर जहां की बात करें तो जहां पर जो आपका बेंडिंग मूवमेंट होगा, और जो जहां पर भी जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। सो इन दैट केस वी कैन ट्रांसफर द लोड। तो अब हमने सेकंड स्टेप क्या है? वी हैव टू ट्रांसफर द लोड। अब ये क्या है? ट्रांसफर द लोड फ्रॉम, आप इसको कोई पॉइंट रख लो, कोई पॉइंट रख लो आप, सो दैट आपको बताने के लिए, क्योंकि लोड जहां पे एक्ट कर रहा है तो जे मैं पॉइंट कहता हूं K, है ना? ट्रांसफर द लोड फ्रॉम K टू B। हमें फ्रॉम K टू B, तो जब ट्रांसफर करेंगे लोड को फ्रॉम K टू B, तो एक हमें क्या मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर? बट वी विल गेट एट पॉइंट B वी विल गेट W। एक हमें क्या मिलेगा? W इंटू L/2, जहां पे हमें एक W इंटू L/2 मिलेगा, और दूसरा हमें क्या मिलेगा? ये इसका ड्रा कर लेते हैं, फिगर ही ड्रा कर लेते हैं। तो अप टू B तक बीम बनाते हैं हम, तो बीम हमारी, तो पॉइंट जे आपका B है, दिस इज योर पॉइंट अप टू B, ये पॉइंट B है, राइट? और इसकी जो लेंथ है दैट इज L/2 फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। तो फिक्स्ड एंड से लेंथ कितनी है? L/2। तो आपने अब ट्रांसफर किया लोड को, जहां पे हमें क्या मिला? एक हमें जहां पे मिला लोड, क्या मिला? लोड मिला, एक हमें मिला लोड, राइट? व्हेन यू आर ट्रांसफर द लोड, कौन सा लोड मिला? W इंटू L/2, राइट? और जब ट्रांसफर करेंगे तो दूसरा हमें क्या मिलेगा? कपल मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा, और जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? W क्या है? दिस इज द लोड, ये होगा W इंटू L/2, ये आ गया लोड, राइट?
ये क्या आ गया? लोड, जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं जहां से। और मुझे बताइए कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम के टू बी, एंड फ्रॉम के टू बी द डिस्टेंस इज L/4, because as I told you that this point load is always acting on the center of the UDL length, जहां पे UDL लोड का एक्ट कर रहा है उसके सेंटर में जो एक्ट करेगा, एंड इफ द लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर, UDL की जो लेंथ थी वो क्या है? L/2 है, सो इट इज एक्टिंग हाफ ऑफ द L/2, दैट इज L/4। यू अंडरस्टैंड? जो हाफ जो होगा इसका L/2 का, वो क्या होगा? L/4। तो लेंथ जो हमें जहां से जहां तक मिलेगी, दिस इज L/4। You understand? This is your movement, right? ये आपका आ गया मूवमेंट। तो लोड हमें मिल गया, लोड एट बी जब ट्रांसफर किया, लोड एट द पॉइंट बी के ऊपर क्या मिला? W इंटू L/2, एंड मूवमेंट जो कपल्स है M, this is equal to W into L square upon 8. You understand? W into L square upon 8. Now next step is same. हमारा जहां पर सिर्फ यही एक स्टेप था समझने वाला कि यूडीएल लोड को हमें क्या करना है? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, और फिर उस पॉइंट लोड को कहां पे एक्ट करेगा? वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट, एंड देन वी हैव टू ट्रांसफर टू दैट पॉइंट जहां पे आप स्लोप और डिफ्लेक्शन को निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट एवरीथिंग इज सेम, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो पहले क्या करेंगे आप? हमें स्लोप जहां पे निकालना है बी के ऊपर, तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द स्लोप बाय दिस। लोड के पॉइंट लोड से जो हमारा स्लोप का फार्मूला होगा वो लिखेंगे, प्लस दूसरा जो कपल का फार्मूला होगा वो लिखेंगे। इन दोनों को आप क्या करेंगे? सेपरेटली वी विल राइट डाउन, वी विल कैलकुलेट, एंड देन वी विल ऐड इट, एंड देन यू विल गेट द टोटल स्लोप एट दिस पॉइंट हियर बी। तो देयरफॉर लिख लीजिए आप, स्लोप क्या होगा? स्लोप एट बी निकाल लो आप। पॉइंट लोड का क्या फार्मूला है? पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। पॉइंट लोड का W, J और W आ गया बड़ा, मैं सिर्फ पॉइंट लोड का सीधा फार्मूला L स्क्वायर अपॉन 2EI प्लस ML अपॉन EI, राइट? यू अंडरस्टैंड? तो W क्या है? व्हाट इज योर W है? लोड क्या है? W इंटू L/2 पुट करें R, पुट द वैल्यू W की जगह स्मॉल w इंटू L/2, ये आपका आ गया लोड। एंड व्हाट इज योर L? L इज फ्रॉम द फिक्स एंड, इट इज L/2, सो इट इज L/2 का होल स्क्वायर, राइट? दिस इज L स्क्वायर मीन्स L/2, राइट? ये तो मैंने एक जो पीछे फार्मूला था डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, और आगे तो जो इसकी जो भी लेंथ वगैरह दी है, देन वी हैव टू राइट इट लाइक दैट, राइट? डिवाइडेड बाय 2, और फ्लेक्चुरल रिजिडिटी इसकी दी है EI, तो जो आपका ऐसे ही रहेगा 2EI प्लस दूसरा क्या है? M इंटू L अपॉन EI। तो M क्या है? व्हाट इज योर M? दैट इज WL स्क्वायर अपॉन 8। So this is WL square upon 8. What is your L square? What is your L square? So L square is, not L square, what is your L? That is L/2. That is L/2, right? Upon EI. राइट? तो सॉल्व कर लीजिए इसके। देयरफॉर स्लोप थीटा बी, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? WL³ 8 to 60। सो दिस इज W इंटू L³ अपॉन 16EI प्लस
So this is also equal to WL cube upon 16 EI. WL cube upon 16 EI. So this is 2 WL cube upon 16 EI. So your slope is WL cube upon 8 EI. WL cube upon 8 EI, right? So this is your slope. You understand this? So ये आपका आ गया स्लोप एट दिस पॉइंट. अब इसी तरीके से हम इसका डिफ्लेक्शन भी निकाल लेंगे, राइट? तो इसको आप नोट कर लीजिए एंड आई एम गोइंग टू रब इट. नोट कर लीजिए इसके. अब देखिए डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, दैट इज वाई बी, राइट? तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी कितना होगा? पहले विद द पॉइंट लोड क्या होगा? दिस इज इक्वल टू W इंटू पॉइंट लोड के हिसाब से 3EI. ये आपका डिफ्लेक्शन का फार्मूला है फ्रॉम द पॉइंट लोड, प्लस और कपल के हिसाब से ये फार्मूला है ML स्क्वायर अपॉन 2EI, राइट? वेयर L कितना है आपका? L/2 एज पर द प्रॉब्लम, राइट? वेयर L क्या है? क्योंकि बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो L आपका L/2 होगा. बाकी ये वैल्यू आप पुट कर लीजिए. तो W की क्या वैल्यू आई थी? व्हाट इज W? W इंटू L/2. तो ये लिख लो यहां पे, W जो बड़ा था, एंड व्हाट इज योर M की क्या वैल्यू थी? W इंटू L/2 इंटू L/4, यही था. सो दिस इज WL स्क्वायर अपॉन 8, राइट? तो ये M की वैल्यू थी, तो ये पुट कर दीजिए जहां पे, ये वैल्यू आप पुट कर लीजिए. देयरफॉर W की जगह आया W इंटू L/2. L क्या है? L/2. Because we are finding the slope and the deflection at this point at the distance of L/2 from the fixed end, right? So upon 3EI, that will remain same, plus M क्या है? W L square upon 8 into L/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2EI, राइट? अब सॉल्व कर लो इसको. तो ये वाला आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू WL4 upon 48 EI प्लस ये भी आ गया WL4 अपॉन 64 EI, राइट? तो आप LCM वगैरह निकाल लो एंड यू विल गेट
7WL4. So this is equal to 7WL4 upon 192 EI. This is, सॉल्व कर लीजिए इसे आप, 7WL4 upon 192 EI, right? So this is your second problem. How we can calculate the slope and the deflection? Everything is same. There is no difference, much difference in this problem. Only the difference is that in this case, we are getting the UDL load. We are not getting the point load. तो UDL लोड को हमें पहले पॉइंट में कन्वर्ट करना है, फिर हमें ये देखना है कि कहां पे ये एक्ट करेगा, और फिर उस पॉइंट से पहले हमें इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है. देन वी हैव टू सी द लोकेशन at which point this load is acting, then we have to shift it from that point to that point where you are calculating the slope and the deflection. Rest everything is same, only this is the difference. You understand this problem? Now the next problem देखिए इसकी. So one more concept I want to give here, जो कि मैं पीछे नहीं दिया था, वो एक और इसमें एक कंसेप्ट होगा. आपको इस किस्म के प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं इन द गेट एग्जामिनेशन. नॉट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कन्वेंशनल तो नहीं होंगे, बट जो आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है वहाँ पे आपको ऐसे प्रॉब्लम मिल सकते हैं. सो दिस इज मैक्सवेल. ये पहले कंसेप्ट देख लीजिए क्या है ये. मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, राइट? सो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, तो इसमें हम देख लेते हैं. सपोज ये क्या है, ये केस 1 में लेता हूं अगर, and case 1 में this is your beam, right? This is your beam, and this point you can say this point is A, this point is B, and this point is C. So in case 1 में क्या है कि suppose load is acting at point A, right? मैं suppose this is your case 1. लोड इज एक्टिंग एट पॉइंट ए. तो इसी तरीके से अगर केस सेकंड की बात करूं, सो दिस इज द पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी, राइट? तो इसमें क्या है कि लोड जो आपका है वो कहां पे एक्ट कर रहा है, पॉइंट बी के ऊपर. यू अंडरस्टैंड? ये आपका केस फर्स्ट था. तो मैं कहता हूं कंसिडर ए, सपोज यू आर कंसिडरिंग ए बीम रेक्टेंगुलर, दिस इज कैंटिलीवर बीम, दैट one load is acting at this point at the free end, and the other load is acting at the other end, and you have to find the maximum deflection, right? आपको क्या करना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है. तो जैसे केस फर्स्ट है, तो केस फर्स्ट से हम क्या है, ये लोड आपका इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो यू कैन कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट बी. पॉइंट बी की डिफ्लेक्शन को आप क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन ट्रांसफर द लोड एंड यू कैन, दिस विल बिकम एज ए पॉइंट लोड हियर. यू कैन कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट बी. तो जहां से आप बाई बी की क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, एंड बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ वाई बी, राइट, you can calculate the deflection of
द पॉइंट ए, राइट। सो ये जो दो पार्ट मैंने आपको सेपरेट करके बताए हैं, दीज आर नॉट द सेपरेट पार्ट, बट यू कैन से दिस इज द पार्ट ऑफ ए वन कैंटिलीवर बीम। तो उसमें क्या है कि जैसे ये लोड आपका इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करता है, तो मैं कहता हूं दिस लोड इज डब्ल्यू ए, और ये जहां पे है तो दिस लोड इज डब्ल्यू बी। जो आपकी डिफ्लेक्शन इस पॉइंट के ऊपर है दिस इज बाई बी, और जो आपकी डिफ्लेक्शन इस पॉइंट के ऊपर है दिस इज बाई ए, राइट। तो अगर आपको इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है दिया है, सो फॉर द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन यू कैन से 1 number or 2 number, so it is not basically used in the conventional जो हमारे क्वेश्चंस हैं वहां पे नहीं हम यूज करते इसको, लेकिन हम कर सकते हैं। सपोज वी कैन कैलकुलेट इट, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट लोड। तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरम क्या थी, व्हाट इज द अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरम, सो अकॉर्डिंग टू the Maxwell, according to the Maxwell theorem, what is the Maxwell theorem? That is WA into by A, this is equal to WB into YB, right? So therefore आप कह सकते हैं WA upon WB, this is equal to by B upon by A. You understand? By B upon by A. So this is your Maxwell theorem. WA क्या हो गया? Load which is acting at this point A, at the point A. WB, the load which is acting at the point B. A की डिफ्लेक्शन आप कैलकुलेट कर लो, पॉइंट बी की डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लो, एंड यू विल गेट द टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए। ए की डिफ्लेक्शन को आप बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन कैलकुलेट, राइट। तो बाई ए की, देयरफॉर बाई ए, अगर मैं बाई ए की बात करूं तो बाई ए इज इक्वल टू by V into WV upon WA, right? तो इस तरीके से we can calculate the value of YA. You understand this? तो चलो इसका भी एक छोटा सा प्रॉब्लम हम करते हैं. This is one more concept. ये very small concept is there. This is called the Maxwell reciprocal theorem. उसमें क्या है कि आपके बीम के ऊपर सपोज दो पॉइंट्स के ऊपर कोई डिफरेंट लोड है, एक पॉइंट के ऊपर आपको डिफ्लेक्शन गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो आपने कैलकुलेट करनी है, और दूसरी के डिफ्लेक्शन को आप बाय यूजिंग दिस मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, ये जो रिलेशन है WA इंटू बाई ए, दिस इज इक्वल टू WB इंटू बाई बी, बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अदर डिफ्लेक्शन. यू अंडरस्टैंड? So this is also one more concept. You note on this. तो इसी का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, right? So let's see this problem. So this is the cantilever beam as per the question. This is the cantilever beam and 20 kilonewton load is applied, vertical load is applied at the free end of the beam. This cantilever beam is having the span कितना है? 3 meter. Span of the beam is 3 meter, right? And 20 kilometer load is applied vertically downward at point A. So दिस लोड विल कॉज, जब ये लोड अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा? डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी, दैट इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम, दैट द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी ड्यू टू दिस लोड, दैट इज 2 mm, that is the load free end, this causes the vertical deflection of 2 mm at point B, that is at a distance of 1 meter from the fixed end, right?
जहां तक क्लियर है? नाउ सेकंड पार्ट इसी प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट मींस इन continuity of this. Now the 10 kilonewton load that is also applied vertically downward at this point B, which is 1 meter from the fixed end, right? So now we have to find the total deflection. Now we have to find the deflection. तो डिफ्लेक्शन कहां पे होगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे होगी? एट द एंड ए. सो मींस वी हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द एंड ए. तो हमें निकालना क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट ए. यू अंडरस्टैंड? तो एज पर दिस प्रॉब्लम हियर आई एम यूजिंग द मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम. इस प्रॉब्लम के लिए मैं मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम यूज कर रहा हूं. अदरवाइज आप दूसरे तरीके से तो इसको निकाल सकते हैं, बट जहां पे जो पॉइंट ये है कि जहां पे उसने डिफ्लेक्शन बताया है बी पॉइंट के ऊपर, वहीं के ऊपर ही वर्टिकल लोड आपका एक्ट कर रहा है. तो जब इस किस्म की प्रॉब्लम होगी तो आई थिंक इट इज एडवाइजेबल दैट यू कैलकुलेट और यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता था? मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम अकॉर्डिंग टू दिस तो अगर मैं पहले इसको ही एक्सप्लेन करता हूं तो अगर इन केस फर्स्ट की बात करें, केस वन में क्या है? केस वन में आपने देखा ये आपका बीम है, राइट? और ये टोटल बीम ले लीजिए आप. केस वन में टोटल बीम है ये, और जहां पे आपका लोड जो है 20 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है एट पॉइंट ए, दैट इज योर बीम, एंड द लोड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट 20 किलो न्यूटन एट द पॉइंट ए ऑफ द बीम, राइट? तो इसमें मैं कह सकता हूं कि डब्ल्यू ए इज गिवन हेयर, लोड एट पॉइंट ए, डब्ल्यू ए दिस इज 20 किलो न्यूटन, और हमें निकालना क्या है? बाई ए मींस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ दिस. अब ये जो केस सेकंड इसका है, ये क्या है? ये बी पॉइंट तक बीम है, इसके ऊपर एक लोड भी आपका एक्ट करता है. कितना है? 10 किलो न्यूटन. और डिफ्लेक्शन भी जो बाई वी दी है दिस इज 2 mm, राइट? तो ये जो इसमें क्या है आपका? तो यू कैन से बाई वी आपको दिया गया है, पहले आपको डब्ल्यू बी दिया है. डब्ल्यू बी दिस इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन एंड बाई वी दिस इज गिवन एज 2 mm, राइट? बाई वी दिस इज गिवन एज 2 mm. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरम क्या थी हमारी? अकॉर्डिंग टू according to Maxwell theorem, WA into by A this is equal to WB into by A. This is according to the Maxwell theorem, WA into by A. तो आप WA की वैल्यू निकाल, जहां पे क्या है 20 किलो न्यूटन रहने दीजिए, इनटू बाई ए. अब 20 लिख लो, ये 10 इंटू 3 इंटू बाई ए, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10 सो 3, बाई भी दिया है 2 mm, राइट? तो देयरफॉर बाई ए इज इक्वल टू, बाई ए कितना होगा? दैट इज 10 अपॉन 20 into 2. So therefore, by A is equal to 1 mm.
Yes. So YA, this is equal to 1 mm. तो J आपका क्वेश्चन था, यू अंडरस्टैंड। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि मैक्सवेल थ्योरी लगा के इसको मैंने सॉल्व किया कि अगर इस किस्म का क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको दो वैल्यू दी होगा, दो लोड दिए होंगे, तो आपको हो सकता है एक डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी पड़े जो डायरेक्ट फार्मूला यूज करके, तो हो सकता है आपको तीन वैल्यू दी हैं तो फोर्थ की वैल्यू निकालनी है, तो बाई यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर, दिस इज ए वेरी स्मॉल कंसेप्ट, तो इसका मैं जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, उसको हम करते हैं। दैट कंसेप्ट इज वेरी
So just see this. This is the problem. This is the beam. This is the cantilever beam from A to B. This is the cantilever beam. अब इसमें क्या difference है? What is the difference in the problem? What is said in the problem that from A to C, the part of the beam is rigid, and from C to B, he has given the flexural rigidity EI, right? We have to find the slope and the deflection. What is we have to find? We have to find the maximum, not slope, but we have to find the maximum deflection of the beam. हमें क्या find out करना है? Maximum deflection. We have to find maximum deflection of the beam. हमें beam का maximum deflection find out करना है. So what is your numerical क्या है? इधर लिख लेते हैं. Part AC of the ये दिया है पार्ट AC of the cantilever beam is rigid, right? पहला. सेकंड इसने दिया है पार्ट BC is having the flexural rigidity. So flexural rigidity दिया है. Flexural rigidity is equal to EI, right? So we have to find the maximum deflection in the beam. This is given. अब देखिए दिस जे प्रॉब्लम बहुत एक कंसेप्ट की प्रॉब्लम है. इसमें बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है. एंड लोड W इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट एट द फ्री एंड. अब लोड जो है इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है. सपोज इफ द प्रॉब्लम इज नॉट गिवन लाइक दिस, अगर ये एक सिंपल बीम होता आपका हैविंग द फ्लेक्चुरल रिजिडिटी कांस्टेंट दैट इज फ्रॉम A टू B, तो आपने स्लोप इस पॉइंट के ऊपर निकालना है. A के ऊपर मैक्सिमम स्लोप जहां पे आएगा तो इसी पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालना है. और लोड भी आपका कंसंट्रेटेड लोड इज आल्सो एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट. तो यू कैन यूज द डायरेक्ट फार्मूला. क्या था? तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करके आप पॉइंट लोड के केस में बाई A आप निकाल सकते थे W इंटू L³ अपॉन 3EI, राइट? ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है. बिकॉज लोड इज एक्टिंग दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर लोड कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, सॉरी डिफ्लेक्शन निकालना है. तो डायरेक्ट फार्मूला यू कैन यूज, राइट? हम क्या कर सकते थे? वी कैन यूज द डायरेक्ट फार्मूला. अगर इसका फ्लेक्चुरल रिजिडिटी सेम होती, और यू कैन से दिस कैंटिलीवर बीम is made of the same material, but the problem is, जहां पे क्या प्रॉब्लम है, जहां पे क्या धोखा दिया है, क्या प्रॉब्लम है, जहां पे क्या कंसेप्ट आपको समझना है कि ये बीम जो आपकी है, इट इज हैविंग द बेरिंग फ्लेक्चुरल रिजिडिटी. बिकॉज ये जो पार्ट AC है बीम का, वो दिया है कि पार्ट AC जो बीम का है वो क्या है? रिजिड है, राइट? पार्ट AC ऑफ द बीम इज रिजिड पार्ट. और जो पार्ट CB है या BC है, उसकी उन्होंने फ्लेक्चुरल रिजिडिटी आपको दिया है. अब देखिए पार्ट AC है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड. तो अगर रिजिड बीम है फ्रॉम A टू C, द बीम इज रिजिड. ये आपको तो क्वेश्चन में दिया है, द बीम इज रिजिड. Then what is the value of flexural rigidity here? तो इस केस में E की आपकी क्या वैल्यू होगी?
राइट, ई की हमारी क्या वैल्यू होगी। तो जैसे आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है, इन केस ऑफ रिजिड मटेरियल द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। तो इन केस ऑफ रिजिड मटेरियल ई की जो वैल्यू है वो क्या है, इन्फिनिटी है, राइट। ई की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और यू कैन से कैसे आती है, सिग्मा इज इक्वल टू, जैसे आपको पता है सिग्मा हमारा किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन इंटू ई, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई। अब एप्सिलॉन क्या है, दैट इज द चेंज इन लेंथ। एप्सिलॉन क्या है, ये आपका डिफॉर्मेशन है, चेंज इन लेंथ है, डिफॉर्मेशन है। नो यू टेल मी दैट इन केस ऑफ रिजिड मटेरियल इज देयर एनी डिफॉर्मेशन। मटेरियल क्या है, रिजिड है, क्या इसमें डिफॉर्मेशन होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जो आपका डिफॉर्मेशन है इसमें इन केस ऑफ रिजिड मटेरियल, आपकी डिफॉर्मेशन क्या है, जीरो है, राइट। तो एप्सिलॉन जो है जीरो है, तो सिग्मा आपका क्या हो गया, जीरो इंटू ई। देयरफॉर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन जीरो एंड दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। समझ आ गया कि ई की वैल्यू हमने क्यों इन्फिनिटी लिया, यू अंडरस्टैंड दिस, why we have taken the value of e is equal to infinity। क्या इसका प्रूफ है, हमने लिख तो दिया कि e की वैल्यू इन्फिनिटी है, इसका क्या प्रूफ है, हाउ वी कैन से, क्या किस बेस के ऊपर हमने कहा कि e की वैल्यू इन्फिनिटी है, दिस इज द वे, राइट। क्योंकि जो आपका सिग्मा है, स्ट्रेस जो है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय हुक्स लॉ, यू नो दैट, राइट। तो एप्सिलॉन इन केस ऑफ रिजिड मटेरियल, जो एप्सिलॉन है हमारा डिफॉर्मेशन है या चेंज इन लेंथ है बीम की, वो क्या होगा, वो तो मटेरियल रिजिड है, और जो आपकी चेंज इन लेंथ है इन दिस केस, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन जीरो, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, दैट इन केस ऑफ रिजिड मटेरियल की बात करें तो उसमें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, ये तीनों चीजें ई जी एंड के, ई जी एंड के, ई क्या हो गया, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड के क्या होता है, बल्क मॉडुलस। सो ये इन तीनों की वैल्यूज इन्फिनिटी होगी, यू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। रिजिड मटेरियल में आपकी ई की, जी की, ऑल द मॉडुलस, ऑल द वैल्यूज ऑफ द मॉडुलस, चाहे वो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, चाहे वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, चाहे वो बल्क मॉडुलस है, उन सभी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो दिस पॉइंट इज क्लियर। अब देखिए अब जब इसका ई आपका इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या होगा, जो फ्लेक्चुरल रिजिडिटी है आपकी, वो भी क्या होगी, इन्फिनाइट होगी, बिकॉज फ्लेक्चुरल रिजिडिटी क्या होती है, फ्लेक्चुरल रिजिडिटी दिस इज इक्वल टू ई इंटू आई। तो फॉर रिजिड मटेरियल, फ्लेक्चुरल रिजिडिटी इज इक्वल टू क्या होगा, ई क्या होगा, इन्फिनिटी इंटू आई। सो देयरफॉर आप कह सकते हैं क्या होगा, फ्लेक्चुरल रिजिडिटी क्या होगी, मींस दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो रिजिड मटेरियल के लिए फ्लेक्चुरल रिजिडिटी क्या आया, मींस ई आई क्या है, देयरफॉर ई आई दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर आपकी रिजिडिटी किसी चीज की इनफिनाइट है तो इसका मतलब है वो क्या है, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगी,
until or unless, जितना मर्जी आप इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगा दीजिए, जैसे ये लोड आपका जहां पे एक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर तो बेंडिंग मोमेंट है W इंटू एल, जितना मर्जी आप इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगा लीजिए, बिकॉज दिस बीम इज रिजिड सो इट विल नॉट बेंड एट ऑल, यू अंडरस्टैंड। जे बेंड नहीं होगी तो फिर मुझे बताइए व्हाट इज द फन to keep the load at this point A? Is there any you can say necessity that we will keep the load at the point A? No, there is no necessity, because we are keeping the load here, we are putting the load here, and there is no deformation. There is you can say, because its rigidity 0 until जितना भी आप बेंडिंग मोमेंट लगा लीजिए, जितना भी इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगे, लेकिन इसकी क्या होगी, क्योंकि इसकी जो फ्लेक्चुरल रिजिडिटी है वो क्या है, इनफिनाइट है, तो डिफॉर्मेशन का सवाल ही नहीं होगा, तो इसकी डिफॉर्मेशन नहीं होगी। अब सवाल ये है कि हमें क्या करें। अब मुझे देखिए, अगर मैं जब जहां पे लोड था, सपोज जो जहां पे लोड था तो क्या था, आपकी जो ये थी जहां से लेके जहां तक क्यूबिक पैराबोला, अब जहां पे तो डिफॉर्मेशन है नहीं, तो क्या क्या होगा, जहां से जो थी ये स्ट्रेट लाइन बनती, यू अंडरस्टैंड, यही है। अब जब मैंने जहां से जहां पे इसको शिफ्ट किया, अगर जब मैंने लोड को जहां से जहां पे ट्रांसफर किया, तो मुझे बताइए कि जो इलास्टिक कर्व होगी क्या वो सेम रहेगी या वो चेंज होगी। इलास्टिक कर्व सेम होगी, बिकॉज देखिए पहले तो हम इलास्टिक कर्व ड्रा कर लेते हैं, तो इसकी भी जो इलास्टिक कर्व होगी जहां से जे लेके जहां तक पैराबोला है, और उसके बाद जहां से लेके जहां तक स्ट्रेट है, राइट। यू अंडरस्टैंड, क्योंकि जहां पे जब लोड जहां पे एक्ट कर रहा था इस पॉइंट के ऊपर, जब लोड इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा था, तो ये जो पार्ट BC था इसकी इलास्टिक कर्व जो थी वो क्यूबिक पैराबोला थी, लेकिन जो जहां से लेके जहां तक था, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट थी, जो मैंने ब्लैक लाइन से शो किया। नाउ मैंने जैसे आपको बताया कि देयर इज नो पॉइंट टू कीप द लोड एट दिस पॉइंट A, so what we can do, we can transfer the load from A to C, right। अब जब मैंने लोड को A से C के ऊपर ट्रांसफर किया, देखिए A से C के ऊपर ट्रांसफर किया लोड को, राइट, तो ये आपका आ गया W, ये C लिख लो, ये आ गया W, और जहां पे आ गया आपका बेंडिंग मोमेंट W इंटू एल, राइट। अब मुझे बताइए, जब लोड जहां पे एक्ट कर रहा था तब भी जो इसके बीच में AC के बीच में बेंडिंग मोमेंट कितना था, W इंटू एल, राइट। कोई भी आप सेक्शन ले लें एंड यू विल फाइंड द बेंडिंग मोमेंट, वो अगर सेक्शन आपने एक्स में ली W इंटू एक्स, एंड फ्रॉम A टू C द बेंडिंग मोमेंट इज W इंटू एल, राइट। और जब आपका जहां पर भी जब W इंटू एल था, और जब आपने इसको शिफ्ट किया इस पॉइंट के ऊपर, तो जहां पर भी आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या है, W इंटू एल। तो यू कैन से, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन तो चेंज नहीं हुआ, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जो लोड जब WA के ऊपर था, जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन उस वक्त था, सेम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन यू विल गेट व्हेन द लोड इज ट्रांसफर फ्रॉम A टू C। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन विल रिमेन सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी इलास्टिक कर्व भी सेम होगी। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है क्योंकि जब जहां पे हम ये ड्रा करें, जहां पे लोड था, उस वक्त हमारी इलास्टिक कर्व फ्रॉम B टू C क्या थी, क्यूबिक पैराबोला थी, लेकिन उसके चाहे लोड इस जहां पे था, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ बेंडिंग मोमेंट का इसकी डिफॉर्मेशन के ऊपर या डिफ्लेक्शन के ऊपर, बिकॉज इट इज ए रिजिड मटेरियल। तो जो आपकी थी इलास्टिक कर्व थी वो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट क्या हुई, स्ट्रेट हुई। और जब मैंने इसको जहां से जहां पे ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, जो जहां से जहां तक क्या थी आपकी
इलास्टिक कर्व जो ग्रीन में शो क्यूबिक पैराबोला और आगे ये स्टेट हो गया। यू अंडरस्टैंड? सो यू कैन से देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इलास्टिक कर्व। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसको हम लोड को ही ट्रांसफर कर लेंगे। देयर इज नो पॉइंट टू कीप द लोड हियर बिकॉज इट इज ए रिजिड मटेरियल। तो हम जो डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालेंगे वो इस पॉइंट के ऊपर निकाल लेंगे, बाई सी के ऊपर निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जहां पे तो डिफ्लेक्शन आपकी नहीं होगी, जो भी डिफ्लेक्शन आएगी जहां तक आएगी आगे मटेरियल आपका रिजिड है, राइट। तो डिफ्लेक्शन आप क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, जो जहां पे जो डिफ्लेक्शन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू दिस होगी, तो बाई सी की डिफ्लेक्शन हम निकाल लेंगे। तो आप ये ड्रा कर लीजिए, चलो ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप क्या करें, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, राइट, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी? पहले आप बाई सी निकाल लीजिए, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकाल लीजिए, बाई सी निकालेंगे, फिर आप थीटा निकाल लेंगे, मीन स्लोप एट पॉइंट सी, थीटा सी निकाल लेंगे, बिकॉज बाई ये जो हमें होगा, जो हमारी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अब जो यहां पे होगी बाई ए, दिस इज इक्वल टू बाई सी प्लस theta c into AC. You understand? This is the maximum deflection. यही हमारा फार्मूला है। तो बाई सी निकाल लो, बाई सी आपका 2 पॉइंट से निकलेगा, तो बाई सी क्या होगा आपका, बाई सी पहले हम पॉइंट लोड का फार्मूला निकालेंगे, W इंटू एल क्यू अपॉन 3EI प्लस, अब मूवमेंट के हिसाब से क्या होगा, m इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2EI, इनकी वैल्यू आप रख लीजिए। सो दिस इज इक्वल टू, वैल्यू रख लो, W क्या है, W की वैल्यू तो W ही है, यहां पे लोड हमारा क्या है, दैट इज W, एंड दिस इज LQ 3EI, ये तो सेम ही आएगा, प्लस M क्या है, W इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। सो दिस इज इक्वल टू, बाई सी क्या आएगा, बाई सी दिस इज इक्वल टू WL³ अपॉन 3EI प्लस WL³ अपॉन 2EI। तो एलसीएम इसका 6EI आएगा, तो ये आ जाएगा 5 WL³ अपॉन 6EI। यू अंडरस्टैंड? तो बाई सी की वैल्यू आपने निकाल ली, इसको नोट कर लो। सो बाई सी इज इक्वल टू दिस वन, अब थीटा निकाल लीजिए, थीटा सी भी निकाल लीजिए आप। तो थीटा सी क्या आएगा, थीटा सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा सी, सॉरी, सो थीटा सी, व्हाट इज योर थीटा सी, ये पहले पॉइंट लोड से क्या आएगा, WL² अपॉन 2EI प्लस M इंटू मूवमेंट के हिसाब से इंटू EI, राइट। तो वैल्यू रखो, पहली तो सेम ही आ जाएगी वैल्यू, दिस इज WL² अपॉन 2EI प्लस व्हाट इज M, W इंटू L, तो ये भी आ जाएगा W इंटू L²
अपॉन ई आई, राइट। तो ये आपका आ गया 3WL स्क्वायर, दिस इज 3WL स्क्वायर अपॉन 2EI, अंडरस्टैंड। ये आपकी आ गई थीटा सी की वैल्यू। नाउ देयरफॉर बाई ए, व्हाट इज बाई ए? बाई ए का क्या रिलेशन था? बाई सी प्लस थीटा सी इंटू ए सी, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? हमने निकाला था ये बाई सी कितना था? 5WL, व्हाट इज द वैल्यू? 5WL क्यूब, यस 5WL क्यूब अपॉन 6EI प्लस थीटा सी 3WL क्यूब (3WL स्क्वायर अपॉन 2EI और AC कितना है? L। तो ये आपका आ गया 5WL क्यूब अपॉन 6EI प्लस 3WL क्यूब अपॉन 2EI। ये आ गया आपका 14WL क्यूब अपॉन 6EI 7/3WL क्यूब अपॉन, तो ये आपका आ गया बाई ए 7WL क्यूब upon 3EI। So actually this is the calculation part, but जहां पे जो कंसेप्ट था वो आपने समझ लिया। मेन कंसेप्ट जो समझाने वाला था, बिकॉज इट इज ए रिजिड बीम, we are going to calculate the slope at the point deflection at point A and the load is also acting at point A। तो जो हमें कंफ्यूजन होता है, हम क्या करते हैं बगैर सोचे सीधा पॉइंट लोड का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ही हमें लोड एक्ट कर रहा है और इसी पॉइंट के ऊपर हमें स्लोप निकालनी है, तो डायरेक्ट लगा के हम निकाल। बट द प्रॉब्लम है इसके, जहां पे जो एक चीज दी है वो क्या है कि जो बीम आपकी है इट इज हैविंग द वेरी जो फ्लेक्चुरल रिजिडिटी है, इट इज नॉट ऑफ द सेम मटेरियल, इट इज मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। तो मीन्स एक पार्ट बीम का जो है वो रिजिड मटेरियल का है और दूसरा पार्ट की फ्लेक्चुरल रिजिडिटी है। तो रिजिड मटेरियल का जो डेफिनेशन है, एज पर रिजिड मटेरियल जितना भी हम बेंडिंग मोमेंट लगाएं, जितना भी लोड लगाएं, वट एवर वी विल पुट ऑन दैट, तो उसमें क्या होगा कि उसमें डिफॉर्मेशन जो होगी वो आपकी क्या होगी? जीरो होगी। डिफ्लेक्शन आपकी, डिफॉर्मेशन आपकी जीरो होगी। तो डिफॉर्मेशन नहीं होगी, डिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो क्या कर सकते हैं हम? क्योंकि उसमें उस केस में इन केस ऑफ रिजिडिटी जो आपकी इन्फिनिटी की वैल्यू, सॉरी फ्लेक्चुरल रिजिडिटी की वैल्यू है, दिस इज इनफिनाइट, इन्फिनाइट वैल्यू है, तो डिफॉर्मेशन आपकी जीरो होगी, राइट। तो EI जो है इसमें इन्फिनाइट है, डिफॉर्मेशन जीरो होगी। तो पॉइंट हमारा ये था कि लोड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट W, सो देयर इज नो फन ऑफ कीपिंग द लोड हेयर, बिकॉज एज हाउ मच, जितना भी आप बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर अप्लाई करें, बट जहां का तो डिफॉर्मेशन होगा नहीं, तो क्या होगा? आप इसको उठा के जहां पे शिफ्ट कर दें, ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर करने वाला आपको बाकी मेथड सेम है, W लोड है तो ट्रांसफर जहां से जहां करेंगे तो W और एक मूवमेंट मिलेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर बाई सी और थीटा सी की वैल्यू आप निकाल लें और आपने डिफ्लेक्शन निकालनी है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपकी इस पॉइंट के ऊपर होगी बाई ए के ऊपर। तो बाई यूजिंग दिस रिलेशन बाई ए इज इक्वल टू बाई सी प्लस थीटा सी इंटू ए सी, राइट। ये जो पार्ट है बीम का, ये फार्मूला है आपका। तो बाई सी निकाले, थीटा सी निकाले, ए सी की वैल्यू दिया है, तो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। ये आपका आंसर आ गया। तो टुडे दिस इज इनफ। टुमारो अगेन I will take one more lecture of the numericals, of the numerical of this direct formula also, and also I will just